Hello everyone and welcome back. In this session I would be helping you in solving all your queries that usually revolve around the two programming languages C and C++. So without any further delay let's start. बेसिकली जब भी मैं सी एंड सी प्लस प्लस की बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसी कुछ बातें आपने सुनी होंगी. फॉर एग्जांपल कि सी बेटर है सी प्लस प्लस से, या वाइस वर्सा सी प्लस प्लस बेटर है सी से. या फिर आपने ये भी सुना होगा कि अगर आपको सी आती है तो आप सी प्लस प्लस भी आराम से यूज़ कर सकते हो, या वाइस वर्सा अगर आपको सी प्लस प्लस आती है तो आप सी भी ऑटोमेटिकली जानते हो. तो क्या ये सारी बातें ट्रू हैं, मतलब क्या ये सच है या ये कहानी है, मतलब मिथ है. सो इन दिस सेशन आई वुड हेल्प यू इन सॉल्विंग all the confusion that have arisen in your mind around the language C and C++. So for the beginners it is a very important session. So let's start. So basically ऐसा कहा जाता है कि C and C++ काफ़ी similar है. So let's see कौन से ground पे वो similar है. So basically C and C++ का syntax जो है वो काफ़ी same है. तो अगर आप उनको यूज़ करते हो एज ए डेवलपर, अगर आप सी डेवलपर हो या सी प्लस प्लस डेवलपर हो, तो आपने ये नोटिस करा होगा कि दोनों का जो सिंटेक्स है, लिखने का तरीका है, वो काफ़ी सिमिलर है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रोग्रामर्स के लिए ईजी हो जाता है. अगर उनको सी आती है तो वो ईजिली सी प्लस प्लस के सिंटेक्स को समझ सकते हैं और कोड कर सकते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. कोड स्ट्रक्चर भी काफ़ी सेम है. अगेन ये प्रोग्रामर्स को काफ़ी हेल्पफुल है. अगर उन्हें दोनों में से एक भी लैंग्वेज आती है तो वो दूसरी लैंग्वेज में भी इजीली एक्सेल कर सकते हैं. लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज कंपाइलेशन का जो प्रोसीजर है वो भी काफ़ी सिमिलर है दोनों में. Let's move to the next point. They share the same basic syntax. Like I told, similar syntax. उनका जो basic syntax है वो भी काफ़ी similar है. The next point is C++ has a slightly extended grammar than C, but the basic grammar is the same. Again syntax same है, but अगर मैं grammar की बात भी करूँ तो C++ की जो grammar है वो slightly higher level पे है C से, but बेसिक जो ग्राउंड है वो सेम है दोनों का. These are some of the points due to which programmers ऐसा मानते हैं that if you are good at one language, that is C और C++, तब आप दूसरी लैंग्वेज को भी easily समझ के उसमें भी excel कर सकते हो. Now let's learn about the differences between C and C++. So let's move forward. So basically let's start with the first difference. C does not support polymorphism, encapsulation and inheritance, which means that C does not support object oriented programming. While अगर मैं C++ की बात करूँ, C++ supports polymorphism, encapsulation, inheritance because it is an object oriented programming language. Basically अगर मैं आपको बताऊँ तो C++ is superset of C, right? That is a point. अगर आपको मैं ये बताऊँ तो over the few years C ने भी अपनी ग्रामर को काफ़ी इम्प्रोवाइज करा है, उसमें काफ़ी नई चीज़ें ऐड करी हैं. बट अगेन द डिफरेंस लाइज कि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसकी वजह से उसमें इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस का फीचर अवेलेबल है, while C does not support object oriented programming. that is why उसमें इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म के आप फीचर्स को एक्सप्लोर नहीं कर सकते. Now this was the first difference. Let's move forward to the next point. The next point is for the development of code, C supports procedural programming. C procedural programming को support करता है. C++ is known as a hybrid language because C++ supports both procedural and object-oriented programming paradigms. So basically जो C है हमें पहले ही पता है कि वो object-oriented programming को support नहीं करता. So it only supports procedural programming, while C++ hybrid language है जिसमें आप object-oriented programming लैंग्वेज का भी सपोर्ट आपको अवेलेबल है, साथ ही साथ आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो. सो दैट इज अबाउट C and C++. Now let's move forward to the third point. Now the third point is functions and operator overloading is not supported in C. function and operator की जो overloading का फीचर है वो आपको C में नहीं मिलेगा. Meanwhile function and operator overloading आपको C++ में मिलेगी. Now let's move forward to the next point. C
C is a function driven language, C++ is an object driven language. अगेन क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ प्रोसीजरल लैंग्वेज का सपोर्ट अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का नहीं है, सो दैट इज वाई इसमें सिर्फ फंक्शन ड्रिवन कहा जा सकता है. वाइल C++ में क्योंकि आपको हाइब्रिड मॉडल है तो वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट भी मिलता है और साथ ही साथ प्रोसीजरल भी मिलता है, दैट इज वाई दिस इज एन ऑब्जेक्ट ड्रिवन लैंग्वेज. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट. रेफरेंस वेरिएबल्स आर नॉट सपोर्टेड बाय सी. रेफरेंस वेरिएबल्स का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा सी में, वाइल रेफरेंस वेरिएबल्स आर सपोर्टेड बाय C++. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट. डायरेक्ट सपोर्ट फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग इज नॉट सपोर्टेड बाय सी. आपको डायरेक्ट सपोर्ट नहीं मिलेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए इन सी, वाइल एक्सेप्शन हैंडलिंग का सपोर्ट आपको अवेलेबल है इन C++. ओके, now let's move forward to the next point. C provides malloc and calloc functions for dynamic memory allocation and free for memory deallocation. तो dynamic memory allocation के लिए आपके पास है malloc and calloc, while अगर आपको deallocation करनी है तो आपके पास है free. While C++ provides new operator for memory allocation. new operator को आप use करके memory को allocate कर सकते हो and delete operator for memory deallocation. Again यहाँ पे आप देखोगे तो syntax का थोड़ा सा difference आ जाता है, functions का difference आ जाता है. malloc एंड calloc फॉर एलोकेशन, डीएलोकेशन के लिए फ्री. यहाँ पे एलोकेशन के लिए है न्यू ऑपरेटर और डीएलोकेशन के लिए है डिलीट ऑपरेटर. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट. C follows top-down approach. It follows a top-down approach, while C++ follows a bottom-up approach. Okay, let's move forward to the next points. There is no strict type checking in C programming language. वहाँ पे कोई strict type checking नहीं है C programming में, while strict type checking is done in C++. So many programs that run well in C, compiler will result in many warnings and errors under C++ compiler. यहाँ पे इतनी कोई strict type checking नहीं होती in C programming. तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो आपके C के जो कंपाइलर में रन हो रहे होंगे वो रन नहीं होंगे C++ के कंपाइलर में, क्योंकि वो यहाँ पे स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है, राइट. तो इसकी वजह से यहाँ पे वो रन नहीं हो पाएंगे, बट वो C के कंपाइलर में इजीली रन हो सकते हैं. लेट्स मूव टू द कंक्लूजन नाउ. हमारी क्वेरी जो थी वो ये थी कि हमें कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए, C या C++. सो इन दिस सेशन फर्स्ट वी स्टार्टेड विद द सिमिलैरिटीज. कहीं ना कहीं दोनों का सिंटेक्स का जो ग्राउंड है वो काफ़ी सिमिलर है, तो अगर आपने C कर रखी है तो कहीं ना कहीं वो आपको पक्का हेल्प करेगी इन C++ एज वेल, क्योंकि उनका ग्राउंड सेम है. सो इफ यू हैव एक्सेल्ड इन C, you can with a little bit help and a little bit focus you can also excel in C++. बट अगेन आपको पढ़नी तो दोनों लैंग्वेजेस से पढ़ेंगी, राइट. ऐसा नहीं है कि अगर आपको C आती है तो आप आराम से C++ कर सकते हो. यू नीड टू पुट वर्क इन इट. ओके, देन यू कैन अचीव द गोल. ओके, तो ये बात है कि दोनों काफ़ी सिमिलर है और कहीं ना कहीं हेल्पफुल है. अगर आपको एक लैंग्वेज दोनों में से आती है तो कहीं ना कहीं अगर आप उनमें से दूसरी लैंग्वेज को सीखने जाओगे तो आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी. बट ये बात भी सच है कि दोनों में डिफरेंसेस काफ़ी सारे हैं, राइट. कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने आपको कहा कि C++ एक सुपर सेट है C का, सो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने की वजह से और एक लैंग्वेज प्रोसीजरल होने की वजह से कहीं ना कहीं उन दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है. सो माई सेइंग वुड बी कि ऐसा मत मानिए कि दोनों सेम है, अगर एक आती है तो मैं आराम से दूसरी भी कर सकता हूँ. यू नीड टू पुट वर्क, राइट. अगर आपने C कर रखी है सो स्टिल यू नीड टू लर्न C++ टू एक्सेल इन इट. अगेन आपके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि आप C पढ़ चुके हो, तो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प मिलेगी rather than starting from scratch. But again in the end the choice is yours. चूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ज़रूरी नहीं है कि आप C एंड C++ दोनों ही पढ़ो. जस्ट चूज वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद विच यू आर कंफर्टेबल. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, सो गो विद C++, राइट, बिकॉज इट इज़ गिविंग यू दोज फीचर्स, राइट. तो उसमें जाइए और उसको अच्छे से पढ़िए. अगेन द चॉइस इज योर्स. चूज अ लैंग्वेज विद विच यू आर कंफर्टेबल, जिसको आप समझ पा रहे हो. अगेन यू हैव टू पुट हार्ड वर्क, राइट. ऐसा नहीं है कि अगर आपको C आती है तो आपको ऑटोमेटिकली C++ भी आ गई है. यू नीड टू पुट हार्ड वर्क इन बोथ द लैंग्वेजेस. ओके, विच एवर लैंग्वेज यू चूज you need to put hard work, okay, and you need to do proper practice. Again
it can help you in paving a path, but you need to walk on the path. Okay, so I hope you guys have enjoyed today's session. If you guys have enjoyed today's session, make sure you click on the like button and do subscribe our channel. And thank you so much everyone for joining me today. Thank you.